ओके, तो लास्ट क्लास में वी completed fiber boards, and this is the last type of manufactured wood product that we're going to study, and that is veneers. What do you understand by veneers? कोई बता सकता है? Ma'am, it's a very thin slice of natural wood. Right. It is very thinly sliced sheets of natural wood, mostly hardwood. क्योंकि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड्स में hardwoods are harder to acquire, and they're more expensive, and they're more difficult to work with. So what happens is that, and they're also very expensive. So maybe if you don't have the availability of hardwood, or maybe you don't want to create such an expensive product or wall paneling, what you can do is you can use a more economical material like softwood or even MDF or plywood to make a furniture or make wall panels, and then you can use veneers to give it the look and finish of real hardwood. एंड veneers में एक और बेनिफिट होता है बिकॉज रियल वुड के पैनल्स आप कभी भी सिमिलर पैटर्न रिक्रिएट नहीं कर सकते. तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ ओपन बुक इफेक्ट, मतलब अ सिमेट्रिकल इफेक्ट, वो चीज आप veneer से कर सकते हो because you can get multiple slices from the same tree and then you can use it to create a more seamless or a streamlined effect. Veneers are also a kind of manufactured wood or engineered wood product because it is ultimately created out of natural wood. But it is a man-made product. So what is veneer? Veneer is a thin layer of hardwood which is stuck with adhesive to a surface hidden below. Meaning you take a thin layer of hardwood which is your veneer and आप उसको किसी hidden surface पे जो कि सॉफ्टवुड का हो सकता है, MDF का हो सकता है, या इवन प्लाईवुड का हो सकता है, उसके ऊपर चिपका देते हैं. These sheets layers are paper thin, जिनकी thickness is less than 3 mm, मीनिंग 1/8 ऑफ एन इंच से भी कम होती है, जो कि एक सूत होता है उससे भी कम थिकनेस होती है इसकी. And they can even be as thin as 0.6 mm, which is 1/40th of an inch. ना या इसको या तो हम किसी पैनल पे चिपका सकते हैं, वुड पैनल पे, वॉल पैनल पे, या फिर फर्नीचर पे, या फिर sometimes you even get these products जिसका core is made out of engineered wood जैसे MDF, plywood और softwood or anything, and उसके दोनों sides पे veneer लगा दिया जाता है. So you get these panels जिससे आप shelves या furniture बना सकते हो, and you don't have to get veneers specifically and buy separate products. You can just buy a board जो कि पेस्ट होता है दोनों तरफ से veneer से. So all you have to do is cut it into whatever desired shape you want and make it into a furniture. But that process is more popular in laminates and not veneers. Veneer is a natural counterpart of a laminate. Laminates are not made out of natural wood. So since veneer is a natural product, natural material,
natural material, it is available in in a limited number of shades. मतलब हम इसे नेचुरल वुड से हार्डवुड से बनाते हैं, तो हमारी जितनी भी वेराइटीज हैं ऑफ हार्डवुड, हम उतनी ही वेरिएंट्स में या वेराइटीज में इसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन गेट वॉलनट का वेनियर, यू कैन गेट रेडवुड का वेनियर, ओक वेनियर और एबनी वेनियर, राइट? सो इसके वेरिएंट्स, इसके types and finishes are limited, not finishes, types are limited to the availability of natural wood. Wood veneer is generally used to um, cover flat panels like doors, cabinets and walls. But इसको हम curved या groove या relief वाले डिजाइन पे भी यूज कर सकते हैं, because they are so thin कि आप इसे आराम से कर्व के ऊपर स्टिक कर सकते हो. Now, what veneer यूज, अगर हम veneer ही यूज कर सकते हैं, अगर हमें फिनिश नेचुरल वुड का ही फिनिश चाहिए, तो why not just use that wood? Why not just use oak or use walnut or any natural wood? Why do you have to slice it and use it then? So uh, यूजिंग वुड veneer का मतलब होता है कि यू यूज लेस अवेलेबल वुड, मतलब अ रेयरली अवेलेबल वुड. जो जैसे इंडिया में ओक वुड बहुत रेयरली अवेलेबल होती है. So if you use a veneer, then you can get that finish, that look, without having to buy oak wood or having to have oak wood imported, and which will ultimately increase the cost of your project. And sometimes people think that using veneer means that the ultimate quality of that product or furniture is cheap, but that's not true. क्योंकि sometimes people get confused between laminates and veneers. Now, laminates are artificial materials जो कि प्लास्टिक से बनते हैं, derived form of प्लास्टिक से बनते हैं. तो अल्टीमेटली आप कितना भी सुंदर लैमिनेट ले लोगे, उसका लुक एंड फील कभी भी नेचुरल नहीं होता है. दे लुक आर्टिफिशियल. And people confuse laminates with veneers. But जबकि veneers are actual real pieces of wood. So even when you touch veneer or touch a furniture that is mm, clad with veneer, तभी भी you won't be able to tell the difference, and it feels and looks like natural wood without having to spend that much money on buying uh, that expensive hardwood, or acquiring that expensive hardwood, which will ultimately increase costs and energy consumption, carbon footprint of your project, because आप उसको ट्रांसपोर्टेशन में, उसको acquire करने में, उसको इंस्टॉलेशन में, वर्क करने में आप इतना एक्सपेंसेस बढ़ाते जाओगे अपने. इंस्टेड यू कैन जस्ट यूज अ veneer. Now, जब हम veneers यूज करते हैं, तो it is very important that we give proper specifications for these veneers for multiple reasons. एक तो रीज़न ये होता है कि क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वुड के पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिनिश और पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैमिनेट को आप यूज़ करोगे, एंड इफ़ ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको और मटेरियल एक्वायर करना पड़ा, एंड अगर वो स्पेसिफिकेशंस ठीक नहीं है, तो कोई और टाइप का veneer आ जाएगा जिसका लुक एंड जिसका स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होगा, एंड देन the different faces, different finishes in your project, in your space will not match. So it's important for designers to provide detailed wood veneer specifications. Otherwise, panels may not match, and the sequence matched veneers may not be consistent, meaning
हम अगर बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ओपन बुक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, विच इसका मतलब होता है कि अगर हम एक पैनल पे एक टाइप का डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट बाजू वाले पैनल पे उसका मिरर यूज़ करेंगे, सो दैट दैट होल डिज़ाइन लुक्स कंप्लीट. एंड टू बी एबल टू अचीव दैट इन विनियर्स, यू नीड कि वो दोनों विनियर्स सेम स्पेसिफिकेशन के हों. एंड अदरवाइज उसको फिक्स करना, उसे ठीक करना टू मेक इट लुक द वे यू वांट इट टू, दैट इज गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉस्टली. एंड ये चीज़ उसमें उन प्रोजेक्ट्स में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जहाँ पे आप विनियर को बहुत ही लंबे एक्सटेंडेड सरफेस पे अप्लाई करोगे. एंड सपोज आपको विनियर को एक ही फर्नीचर पे यूज़ करना है, तो अगर उसी फर्नीचर पे आप दो अलग फिनिश के विनियर लगा दोगे तो इट विल लुक बैड एंड इट विल मेक इट लुक चीप. So it's important to make sure कि you specify exactly what you want when you buy veneers. Now, the appearance of veneers is intensified by the protective finish of the surface, which can consist of various clear coating materials. So, जब आप कोई veneer लेते हो तो it will look quite rough and वो उतना attractive नहीं लगेगा जितना वो नॉर्मली आपको फिनिशेस या कैटलॉग में लगता है. एंड वाई दैट इज़ बिकॉज वेनियर को यूज़ करने के पहले कई कई बार आप वेनियर ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवर होने के पहले उस पर एक या तो पानी से या ऑयल से या स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिनिश वार्निश या पॉलिश की जाती है, जिससे क्या होता है कि उसका जो नेचुरल कलर है, नेचुरल ग्रेन है, वो और ज़्यादा उभर के आता है. सो हर वेनियर पे एक प्रोटेक्टिव फिनिश की जाती है एंड द टाइप ऑफ फिनिश and the material or the chemicals you use to achieve that finish varies. And उस चीज़ के साथ साथ वो जो अल्टीमेट फिनिश क्रिएट होती है वो भी चेंज होती है. तो आप चाहे कोई भी फिनिश यूज़ करो, when you see a natural veneer and when you see the polished और फिनिश veneer, तो उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा. एंड वो जो फिनिश होती है उससे what you can do is कि you can alter the way light is absorbed or reflected. For example, आप natural uncoated completely bare veneer देखोगे तो it looks quite rough and it's never glossy or it's never satin finished. It looks very rough and very rugged. वो क्यों होता है कि it's absorbing most of the light, right? Because उसका surface is not finished. But जब उस पर clear coating हो जाती है for any kind of coating, so what happens is कि depending on the glossiness or the reflectiveness of that finish, light reflect होने लगती है and the amount of light that is absorbed and reflected changes depending on the kind of finish. तो ultimately जो look आता है जैसे इस image में दिख रहा है, this is finished veneer. तब you really get to see what appearance does that veneer actually have.
some of the options that you get when you're buying veneers are that आप उसे इन 6 तरह से फिनिश कर सकते हो. Actually there are three platforms या 3 areas जहाँ आप उसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो. One is whether it is stained or it is uncolored, meaning आप कभी भी कोई भी नेचुरल वुड लोगे तो उसका एक सर्टेन कलर होता है जो कि उसका नेचुरल कलर होता है. एंड आप उसको स्टेन करना मतलब यू गेट दी स्टेन्स जो वेरी लाइट ब्राउन टू वेरी डार्क ब्राउन रेंज करते हैं. एंड दीज आर वेरी ट्रांसलूसेंट ऑयल्स जो अगर आप नेचुरल वुड पे कोट कर दोगे, इवन प्लाईवुड पे कोट कर दोगे, तो इट गिव्स इट अ सर्टेन कलर. एंड बिकॉज वो ट्रांसलूसेंट होता है तो इट ओनली मल्टीप्लाइज दैट कलर. वो आपका नेचुरल वुड का कलर छुपता नहीं है स्टेन से, इट ओनली एम्पलीफाइज इट, इट मेक्स इट मोर रिचर. सो स्टेन का मतलब क्या होता है? दाग लगना, राइट? तो stained veneer, whether you want it stained or whether you want it uncolored, मतलब आपको बिल्कुल absolutely natural look चाहिए या you want it stained. Then do you want it open pored or filled pored, meaning open pore मतलब होता है कि उसका जो natural grain है, and by now I hope you understand what grain means. Okay, मैं फिर से पूछा, this is I think my 6th time asking you people, grain of wood क्या होता है? The concentric rings of a tree जो बीच में होता है. नो, एक्चुअली जो कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं उन्हें तो रिंग्स ही बोलते हैं. कंसेंट्रिक रिंग्स को रिंग्स बोलते हैं, पर जब हम उस पेड़ के ट्रंक को स्लाइस करते हैं तो जो रिंग्स से टेक्सचर बनता है, राइट, यू वर पार्शली करेक्ट, पर वो जो रिंग्स से टेक्सचर क्रिएट होता है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो कि इसमें जिस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है उसमें ये लाइंस बन रही हैं, राइट, डार्क कलर की लाइंस बन रही हैं, एंड दैट गिव्स इट अ texture and physical texture and visual texture. Okay, you know, right, what is actual texture and visual texture? बेसिक डिज़ाइन में पढ़ा था. Yes ma'am. राइट. सो उससे इसको विजुअल टेक्सचर भी मिल रहा है बिकॉज यू कैन सी कि उस पर लाइन्स बनी हुई हैं एंड इट गिव्स अ टेक्सचर टू द वुड. बट देन यू यहाँ पे जहाँ पे लाइट हिट कर रही है यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी दैट इट हैज़ डेंट्स एंड मार्क्स, राइट, इट हैज़ एक्चुअल टैक्टाइल टेक्सचर. सो ये जो ग्रेन होता है विच इज़ दीज लाइन्स, वो आपके नेचुरल वुड को टेक्सचर देता है, विजुअल एंड टैक्टाइल टेक्सचर. सो नाउ ओपन पोर मीन्स कि हम ये जैसे इस लाइट कलर की टेबल पे हम ये देख सकते हैं कि वी कैन एक्चुअली फील, अगर हम इसे टच कर पाते तो हम उस टेक्सचर को फील कर सकते होते. सो दैट इज़ ओपन पोर्ड, मतलब उसके पोर्स, उसके डेंट्स, उसका टेक्सचर इज ओपन टू टच. देन फिल्ड पोर मीन्स उसको रेजन से कोटिंग कर दी जाती है तो इट गिव्स अ ग्लॉसी almost glass like finish. Like is you can see 2 options, right? एक ही प्रोजेक्ट के 2 सैंपल रखे हुए हैं यहाँ पे. This one says satin burnished crown something with nickel plated inlay. This is the nickel plated inlay and this is the burnished crown something. So ये satin finish है, मतलब this is not matte, this is not glossy, it is smooth but it's not shiny. So this is open pored and this is filled pored. मतलब इस पे आप देख सकते हो कि it has a very distinctly glossy finish and you can यहाँ पे edges पे almost see the layer of resin जो इस पे lay की गई है. So this is filled pored, this is open pored and this table is also open pored.
So filled pore में you only get a visible texture, you can only see the texture but you can't feel it, क्योंकि एक रेजिन की लेयर है और आपके और वुड के बीच में, वेनियर के बीच में. And then you have satin finish or gloss finish. This is a satin finish, this is a glossy finish. So you ये तीन तीन एरियाज हैं जिसमें आप चॉइसेस क्रिएट कर सकते हो. सो यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स. मे बी यू वांट अ स्टेन्ड veneer which is filled pore with a glossy finish or with a satin finish, or maybe I want a stained veneer which is open pored but has a glossy finish. वो वार्निशेस से क्रिएट किया जा सकता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ रेजिन. पर अगर हम चाहें तो ग्लॉसी फिनिश वार्निशेस से भी क्रिएट कर सकते हैं. हाउ, वो हम लोग वर्कशॉप में पढ़ेंगे, वर्कशॉप मेटल एंड वुड वर्कशॉप में. वंस वी कंप्लीट पेंटिंग वुड एंड मेटल पार्ट एंड ग्लास पार्ट, उसके बाद we'll start with the different types of polishes and varnishes that we can do on metal and wood and glass. Anyways, so for now, veneers में कितने types होते हैं? You have 6 different types of veneers. One is raw veneers, जिसमें कोई backing नहीं होती है. मीनिंग रॉ वेनियर्स क्या होते हैं? आपने स्लाइस निकाला, एंड वेनियर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है टू नो दैट नेचुरल रॉ वेनियर, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इट कैन बी यूज फ्रॉम ईदर साइड्स. लैमिनेट्स, जैसे अगर आपने कभी भी घर पे वर्क होता हुआ देखा होगा, एंड जो लैमिनेट्स होते हैं उसके पीछे वाला पार्ट इज़ वेरी रफ और उस पर कुछ प्रिंटेड होता है, एंड इट हैज़ अ बैक, इट हैज़ अ फ्रंट फेस एंड अ बैक फेस जो आपको बताता है कि आप किस फेस को स्टिक करोगे एंड कौन सा फेस आपको दिखेगा. बट वेनियर्स क्योंकि स्लाइसेस होते हैं, आप उसे किसी भी फेस पे लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में आपको उसका ग्रेन दिखाना है. सो रॉ वेनियर्स जिसमें कोई बैकिंग नहीं लगी होती है, आप उसको किसी भी तरह से लगा सकते हो, फ्रंट या बैक. सेकेंड टाइप इज पेपर बैग्ड veneers. पेपर बैग्ड veneers आर बैग्ड विथ पेपर, जैसे कि मतलब उसके नाम में है, एंड दे आर अवेलेबल इन लार्जर शीट्स. क्यों? क्योंकि देखो, रॉ वेनियर्स तो उतने ही बड़े होंगे जितना बड़ा ट्री का ट्रंक था, राइट? जितना बड़ा स्लाइस निकला उतना ही बड़ा आपका वेनियर होगा. देन पेपर बैग्ड वेनियर में क्या होता है कि यू कैन हैव द लार्ज शीट्स ऑफ पेपर जिस पे आप वेनियर्स को स्टिक कर सकते हो, एंड देन यू कैन बाय दोज शीट्स. सो आप उसमें वेनियर्स को बड़े साइज में बाय कर सकते हो. देन थर्ड टाइप is phenolic bagged veneers. These are artificial wood veneers जो कि this is basically a product that looks like veneer but वो सी इसमें क्या होता है कि यू हैव अ वुड वेनियर. वुड तो नेचुरल होती है, द वुड इजंट आर्टिफिशियल. द ओनली थिंग इज दैट उसको उसकी जो बैकिंग होती है, इट इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर वी यूज़ फिनोलिक बैकिंग जो कि प्लास्टिक रेजिन होता है. सो उससे क्या होता है, किसी पेपर इज अल्टीमेटली मेड आउट ऑफ वुड, राइट? एंड हम लोग अगर पेपर की बैकिंग देते हैं तो उससे दो चीज़ें होती हैं. एक तो वी आर स्टिल यूजिंग वुड प्रोडक्ट्स टू बैक अ वुड प्रोडक्ट, तो मतलब हम लोग पेड़ और ज़्यादा काट रहे हैं, वी आर नॉट हेल्पिंग विद दैट एट ऑल. सो एंड ऑल्सो पेपर इज ऑल्सो वाटर एब्जॉर्बेंट, सो इज veneer. तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट होता है, इट इज़ वेरी ससेप्टेबल टू वाटर डैमेज. बट phenolic backed veneers
पहली बात तो उसमें पेपर नहीं यूज़ होता, तो दैट इज़ समवॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली. And it's not artificial wood doesn't mean that the wood is artificial. It just means that it has a backing of a material which is artificial and not natural. And उसे because it is uh, backed with a plastic resin, so उससे ये water resistant भी बन जाता है. So that's why they're becoming increasingly popular as compared to paper bagged veneers. Paper bagged veneers. Then you have fourth type of veneer जो laid up veneers होते हैं, meaning it has raw veneers जो कि combine कर दिए जाते हैं to make larger pieces. इसे heat से fuse कर सकते हैं, bond कर सकते हैं. So इससे क्या होता है कि you get these open book. Let me show you. I've mentioned open book a lot of times. Let me show you what it means. It's a type of matching that we do. Let me show you. Do you see in this? जैसे हम लोग matching कर रहे हैं, and it's almost symmetrical. Yes, ma'am. Almost, it's exactly symmetrical. ये चीज़ जैसे ये है, ये अब अगर हम veneers use करते हैं तो they come out of these two are adjacent slices. मतलब ये back to back slices अगर निकलेंगी तो उसका grain almost match करेगा. एंड बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा उनके ग्रेन में. तो यू कैन यूज देम टू क्रिएट दीज ओपन बुक मैचिंग इन वेनियर्स, जो कि आप लैमिनेट्स में नहीं कर सकते हो बिकॉज they're not natural and they you can't always find pieces that are exactly same. So this is how you match them. So laid up veneers are basically raw veneers जिन्हें combine कर दिया जाता है to make larger pieces, and usually those larger pieces are arranged in that way so that अगर किसी को वो effect चाहिए book matching का तो you can get that easily. Then reconstituted veneers are manufactured from fast growing tropical species, meaning these are somewhat eco-friendly. And because they're tropical trees are usually hardwood trees, क्योंकि जो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि सॉफ्टवुड ट्रीज जो कि कोनिफरस होते हैं, दे यूजुअली ग्रो इन कोल्डर क्लाइमेट्स. इवन इन ट्रॉपिक्स आपको हायर ऑल्टीट्यूड पे मतलब माउंटेन्स पे जाना पड़ेगा टू फाइंड दीज ट्रीज. सो if you get these from fast growing tropical trees, so that means you're not completely destroying the natural flora and fauna of a space. You are uh, um, see हम लोगों को wood products acquire करने के लिए usually large brands and factories cut down patches and patches of forests जो
मोस्टली रीप्लांट नहीं किए जाते हैं. So what happens is all these industrial practices are causing a problem to the environment. तो उसका एक solution can be you can take woods that are acquired from fast growing trees जो soft hardwoods होती हैं जैसे poplar basswood जो normally विनियर्स में नहीं यूज़ होती हैं बट उनको वो इफ़ेक्ट जैसे ओक का वॉलनट का इफ़ेक्ट देने के लिए उन्हें स्टेन कर दिया जाता है उनको उन्हें क्रिएट किया जाता है टू मेक देम लुक लाइक more expensive hardwoods but they're actually made from fast growing tropical trees जो regrow कर सकते हैं eventually within a few years. So you're not cutting down the vegetation entirely, you're just making these veneers look more expensive than they are. And the difference between natural veneer and reconstituted veneer is that um, नेचुरल वुड वेनियर तो नेचुरल वुड से एक्वायर किया जाता है मीनिंग उसी पेड़ के वुड से इफ़ आई बाय अ वॉलनट नेचुरल वॉलनट वेनियर तो वो किसी वॉलनट के पेड़ को स्लाइस करके ही एक्वायर किया गया होगा बट रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेनियर्स को अचीव किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज and they are dyed, laminated and sliced and arranged in a certain pattern to make create the effect of natural veneers. Then last is wood on wood veneers, meaning हम दो veneers को अगर चिपका दें तो वो wood on wood veneer बन जाता है. इसको टू प्लाई भी कहते हैं. टू प्लाई मीन्स टू लेयर्स जैसे हम लोगों ने प्लाईवुड में पढ़ा था. प्लाईज इज बेसिकली लेयर्स एंड अगर हम दो लेयर विनियर की चिपका देते हैं आपस में तो वो वुड ऑन वुड विनियर बन जाता है. बट नॉर्मली ये दोनों विनियर्स एक ही पेड़ के या एक ही क्वालिटी या एक ही तो जो फ्रंट में होता है दैट इज़ अ मोर एक्सपेंसिव विनियर एंड जो बैकिंग की जाती है वो यूटिलिटी ग्रेड वुड की विनियर से की जाती है जो ज़्यादा हार्डी हो, ज़्यादा टफ हो, so that you get more strength, and you get the look of a finer veneer. Any doubts? No, ma'am. Okay. See, I want to show you, I just told you right कि हम जब veneer normal खरीद देखते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं दिखता है. It looks kind of old and रफ बट उसको अगर हम इवन पानी से भी अगर वॉश एक लेयर कर देते हैं तो इट मेक्स इट मोर richer, makes it look nicer. I'll show you something.
See, please. अब मैं कुछ नहीं कर रहा. See, the white part is what it normally looks like, veneer looks like. एंड अगर हम इसको इवन पानी के गीले कपड़े से भी वाइप करते हैं तो उसका जो रियल कलर है वो उभर के आता है. एंड पानी से वाइप करना इज काइंड ऑफ टेम्पररी, दैट्स वाई वी नीड स्टेन्स एंड वार्निशेस एंड पॉलिशेस. बट व्हेन यू गो टू बाय और सिलेक्ट विनियर्स तो वो नॉर्मली आपको एक गीले कपड़े से उसे पोंछ के ज़रूर दिखाते हैं. एंड इट्स नॉट ड्रिपिंग वेट, बट या इट्स मॉइस्ट सो दैट उसका रियल कलर आपको दिखाई दे. What are the advantages of using veneers? Um, First is strength. When we use veneer to face furniture or any base, तो उससे उस अल्टीमेटली जो पैनल या जो भी फर्नीचर बनेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. एंड नॉर्मली अगर हम नेचुरल वुड का सॉलिड वुड का फर्नीचर बनाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंसेस या मॉइस्चर से वो क्रैक हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है उसमें. बट विनियर बिकॉज इट्स अ वेरी थिन लेयर एंड इट इज़ बैक्ड विद अ डिफरेंट मटेरियल, तो जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्रिएट होता है इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट वो इन एक्सट्रीम वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर को भी झेल जाता है. Second advantage is efficiency. बिकॉज हम लोग विनियर को किसी नेचुरल वुड को थिनली स्लाइस करके बनाते हैं, तो कोई भी वुड जो होती है वो वेस्ट नहीं होती है. नॉर्मली जब हम कोई भी वुड टिम्बर को कट करते हैं टू मेक अ सॉलिड वुड का फर्नीचर और एनीथिंग, देन व्हाट हैपन्स इज कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एंड वुड टिम्बर वेस्ट होती है in its processing, in cutting it into a certain shape, maybe log में या maybe sections में या box में cut करने के लिए panels में cut करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे cuttings waste जाती हैं. But because veneer is a slice, तो कोई वुड नहीं वेस्ट होती है या कोई सॉडस्ट, या जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो भी पार्टिकल बोर्ड्स या फाइबर बोर्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं. ये जो भी वेस्टेज होता है वुड प्रोसेसिंग का, टिम्बर प्रोसेसिंग का, उसको यूज़ करके वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. सो इमेजिन कितना अमाउंट ऑफ वेस्ट क्रिएट होता होगा टू बी एबल टू क्रिएट अनदर प्रोडक्ट in enough quantity, right? So विनियर्स क्योंकि बहुत ही थिनली स्लाइस किए जाते हैं, शेप कटिंग या ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसमें ऐसे वेस्टेजेस बहुत कम होती हैं एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ अ पीस ऑफ टिम्बर. Then it is environmentally friendly because it is a natural product जो कि अगर हम कॉन्शियसली उसको यूज़ करें, मतलब अगर हम पेड़ों को पूरा नहीं काटें, उसके सिर्फ पीसेस यूज़ करें, एंड अगर हम पेड़ कट कर रहे हैं तो उतने ही ग्रो भी करें,
तो trees and wood is a renewable resources. If we don't use up, मतलब हमारा उसका जो कंजम्पशन रेट है वो उसका रीग्रोथ से ज़्यादा ना हो, तो इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली. एंड अगर हम डेकोरेटिव उसमें बात करें, मतलब फेस क्लैडिंग के लिए विनियर्स, लैमिनेट्स, ऑल दीज थिंग्स, तो विनियर्स आर द मोस्ट environmentally friendly because laminates वगैरह बाकी सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं, एंड प्लास्टिक्स एज वी नो उसका प्रोडक्शन इज़ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग, उसका कार्बन फुटप्रिंट उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड उसके लाइफ लॉन्ग एंड उसको रिसाइकल करने में भी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑन द एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू नेचुरल वुड वेन्यूर्स. आप उसे पेड़ों को मोस्ट मैक्सिमम यूटिलाइज करके क्रिएट करते हो, एंड देन बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट इट कैन बी रिसाइकल्ड और इट कैन बी salvaged quite nicely, or even it can be recycled into another wood product. Then another advantage is उसका appearance. हर veneer is has an original unique design because जो grain patterns होते हैं वो किसी भी दो पेड़ों के सेम नहीं होते हैं. And you every time you use wood veneers, you will get a unique finish and a unique product as opposed to laminates जिसमें एक सेट टेम्पलेट होता है जिससे वो क्रिएट किए जाते हैं. जो प्रिंट उन पे किया जाता है टेक्सचर, वो दैट इज़ आउट ऑफ अ टेम्पलेट एंड दे आर नॉट यूनिक बिकॉज दे आर फैक्ट्री मेड. Then you get versatility because versatility in the usage, क्योंकि वो बहुत ही थिन शीट्स होती हैं, तो यू कैन यूज़ इट ऑन फ्लैट पैनल्स लाइक डोर्स, यू कैन यूज़ इट ऑन फर्नीचर, कैबिनेट्स, you can use it for wall panelings, false ceilings, and even on curved surfaces जहाँ पे laminates नहीं यूज़ हो पाते हैं because laminates are quite thick and they're not very moldable, malleable. But veneers, because वो इतने thin होते हैं, you can stick them onto any kind of undulated surface and it will take. Then you get a lot a durability because veneer natural wood, solid wood की तरह मॉइस्चर से बहुत इजीली वॉर्प नहीं होता है. मॉइस्चर एज इन उस पर डायरेक्टली पानी की बात नहीं की जा रही है, मॉइस्चर एज इन क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी से वो वॉर्प नहीं होता है. इट डजंट स्प्लिट बिकॉज इट्स जस्ट अ शीट, या फिर वो सीजनल चेंजेस से या टेम्परेचर चेंजेस से क्रैक नहीं होता है जैसे सॉलिड वुड हो जाती है. सो आपका अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है, जो फर्नीचर है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है इफ़ यू maintain it, if you take care of it. Then you also have a few disadvantages when it comes to veneers, जैसे कि they are very extremely thin, so अगर directly पानी लग जाता है, मतलब पानी as in you get splashes of water on your veneer, so it might get damaged and it might start to peel, and जो भी उसके नीचे MDF बोर्ड, फाइबर बोर्ड या प्लाईवुड है वो दिखने लगेगा आपको. And then another problem is once it is damaged, it's very difficult to repair क्योंकि आप exactly same veneer, जो कि एडवांटेज थी उसकी, it also becomes a disadvantage क्योंकि अगर आप डैमेज हो जाता है आपसे आपका प्रोडक्ट किसी पोर्शन में, आप उसे पैच फिक्सिंग नहीं कर सकते because you'll never get the same design and same pattern of veneer. So you'll need to repair the entire piece or the entire portion जहाँ पे veneer लगा है. And then veneer is often stuck or laid on particle board, MDF और plywood, जो कि डिफरेंट मटेरियल है, तो उसका जो एक्सपेंशन रेट है, कॉन्ट्रैक्शन रेट है, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम विनियर जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट है. जो कि ये केस हर चीज़ में होता है. अगर आप नोटिस करोगे आपके घर में
मे बी नॉट आपके घर में, मे बी इन अ बिल्डिंग जहाँ पे डोर का या जहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं या जहाँ पे बीम होती है, वहाँ से आपको सबसे पहले प्लास्टर में क्रैक्स दिखने शुरू होते हैं, बिकॉज इट्स अ फेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, ब्रिक एंड कंक्रीट। तो दोनों मटेरियल्स चाहे कोई भी, जैसे पार्टिकल बोर्ड या विनियर है, वो दोनों डिफरेंट तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, दे रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम एक्सपोजर टू टेम्परेचर। सो उससे क्या होता है कि आपका, अगर आप बहुत रफली यूज करते हो तो आपका विनियर विल स्टार्ट टू क्रैक ओवर टाइम। देन installing veneer is a skill based activity. So you need skilled people to be able to install veneers, and it is a time taking process, because जब भी आप इतना फाइन मटेरियल किसी सरफेस पे स्टिक कर रहे हो तो देयर शुडंट बी एनी बबल्स और गैप्स, or even matching the two different veneers panels or sheets of veneers perfectly is very important. तो उसके लिए आपको skilled लोग चाहिए होते हैं, skilled workers चाहिए होते हैं to get the perfect finish. And also आप veneer को लगाने के पहले आपको 3 से 5 दिन वेट करना होता है. You have to get it delivered to your site, एंड जिस रूम में लग रहा है उस रूम में आपको रखना पड़ता है उसको फॉर 3 to 5 days बिफोर यू कैन स्टार्ट इंस्टॉलिंग इट ऑन योर सरफेस, क्योंकि उसको एक्लिमेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है. मीनिंग veneer, because it is a natural product, it needs to get used to that space की environment, the microclimate, the temperature, the humidity, the conditions in that room before you can start installing it. Because हो सकता है humidity बढ़ रही हो, temperature ज़्यादा हो, and आप तुरंत उसे लगा दो, and then suddenly temperature आपका कम रहता है आपके स्पेस में. सपोज धूप में आपका सामान आया, देन आपका कमरा ठंडा रहता है और आपने दीवार पे लगा दिया, एंड आप जब टेम्परेचर कम होगा तब वो पील होने लगेगा, क्रैक होने लगेगा. सो यू हैव टू वेट फॉर 2 to 5 days बिफोर यू कैन इंस्टॉल इट. एंड देन लास्टली, बोर्ड विनियर्स को मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू इट्स आर्टिफिशियल काउंटर पार्ट्स, जो कि लैमिनेट्स वगैरह, एंड दे नीड टू बी पॉलिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट उनकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे. जैसे कि आपको नॉन नेचुरल वुड को टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, बट देन कंपेयर टू द काइंड ऑफ फिनिश एंड द क्वालिटी यू गेट, it's it you can at least maintain it from time to time. It's not really a disadvantage, but हाँ, अगर आप you want a completely stress free, some completely maintenance free product, then you might not want to go for veneer, you want to go for a laminate or something. And with this, आपके wood manufactured products का topic has come to an end, and veneers have come to an end. Any questions? No, ma'am. Okay then. Uh, the file that you were maintaining for these materials, उसे अब आप complete कर सकते हो because your last topic has been completed. And if while making that file you come across any doubts, any questions, then you can ask me. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.